Friends, in nuclear physics, in continuation, we'll start with lecture 2, mass energy and nuclear binding energy, right? Students, in your early classes, high school classes, you are having an idea about this mass energy, right? You are very much acquainted with this Einstein's formula, E is equal to mc square. Matlab, Einstein showed that mass is another form of energy, and one can convert mass energy into other forms of energy, say kinetic energy, and vice versa also. So Einstein gave mass energy equivalent relation, right? Einstein gave Einstein gave mass energy equivalence relation, mass energy equivalence relation, right? That is E is equal to mc square, है ना? So that is where c is what? Speed of light, right? C is speed of light. Keep on writing. I will share the notes. C is speed of light. Correct है ना? एंड चलो यहाँ से शुरू करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में देखेंगे पहले मास डिफेक्ट क्या है। बाइंडिंग एनर्जी, नेक्स्ट कीप हेडिंग बाइंडिंग एनर्जी, राइट। तो स्टूडेंट, बाइंडिंग एनर्जी आने से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं मास डिफेक्ट के बारे में, राइट। गिव हेडिंग मास डिफेक्ट। व्हाट इज मास डिफेक्ट? The difference in the mass of a nucleus M and its constituents is called mass defect, right? The difference in, I'll take example, don't worry. The difference in mass of a nucleus, the difference in mass of a nucleus, let total mass is M, means difference in and its constituents and its constituents. That means I'll be giving you atomic number, mass number. You already know mass of proton, you already know mass of neutron. Okay. So and delta M is called the mass defect. Mass defect is delta M. Okay. So if we want to find delta M, if we want to find the mass defect, then how to find? Let's take the mass of constituent atoms. What is atomic number into mass of proton plus A minus Z, number of neutrons into mass of neutron, right? Minus M. That is the mass of the nucleus. So there will be a difference that is known as mass defect. Correct? Sir, 1 minute. So let's see now. So this is mass defect. We are going to calculate that one. Don't worry. Just make you acquainted with the different terms. Next, write binding energy. What is meant by binding energy? Right. What is meant by binding energy? That is B dot E. Correct. Students, minimum energy required to break the nucleus into its constituent particles, or amount of energy released during the formation of a nucleus by its constituent particles and bringing them from infinity separation, is known as binding energy. So mass defect, equal mass is not same. Let very high speed light is coming, so binding energy is delta m, since that energy is binding energy. So write binding energy definition, just write. It is the minimum energy required. It is the minimum energy required. It is the minimum energy required to break the nucleus, to break the nucleus into its constituent particles, into its constituent particles, right? और उसका दूसरा डेफिनेशन भी ये लिख सकते हैं, just write amount of energy released, amount of energy released during the formation of, released during the formation of nucleus by its constituent particles and bringing them from infinite separation, and bringing them from infinite
separation. That means nothing but binding energy is equal to simply the mass defect delta m into c square. सो अगर हम इसको एमईवी में कन्वर्ट करेंगे, ऑलरेडी हम देख चुके हैं एमईवी मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो बाइंडिंग एनर्जी in mega electron volt MeV is equal to mass defect, we'll calculate, into mass defect in atomic mass unit into 931 MeV. 931 MeV, right? So that is, this is known as binding energy. If any of the nucleus delta m you know, so then you can say how much energy is required in combining them. And binding energy per nucleon, because binding energy of a nucleus, ratio of binding energy is divided by the number of nucleons, and that is what a is. That no, number of nucleons is atomic number. Okay, so write binding energy per nucleon, right? Binding energy, next write binding energy per nucleon, that is be by a. Okay, na? Let's see. So this is what binding energy per nucleus is. That we'll calculate this one. Ratio of binding energy of a nucleus. Ratio of binding energy of a nucleus to the number of nucleons. To the number of nucleons. Right. A. Correct. And in that nucleus, that is in any nucleus is called as number of nucleus is binding energy per nucleons, right? And it is approximately average energy per nucleon needed to separate a nucleus into its individual nucleus. That is also, that much energy will be required to separate a nucleus into its individual nucleons, right? So student, more the be मतलब more the nucleus मतलब binding energy per nucleon, then more it is stable. अगर हम ज्यादा energy खर्चा हो रहा है उसको separate करने में, तो ये ज्यादा stable है. So stability of nucleus is defined. कैसे हम stability of nucleus को determine करेंगे? Be by A करके. It should be confused with Be. For example, चलो एक चीज में लिखता हूँ, फिर नहीं तो फिर भूल जाओगे आप. More is right. More is binding energy per nucleon for a nucleus. For a nucleus, more stable it is. More stable it is, right? The stability of a nucleus is determined by Be per nucleon. और it should not be confused with Be. Binding energy अलग है, per nucleon अलग है. For example, अगर मैं आपको बताता हूँ कि iron 56 is more stable, right? Is more stable than uranium 238, right? है ना? So that means अगर हम कैलकुलेट करेंगे कहीं ना कहीं पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर Fe56, देखेंगे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. दैट विल कम अराउंड, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 8.75, सॉरी इट विल बी 8.75 MeV. एंड यूरेनियम का अगर हम निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सो इट विल बी कमिंग 76 MeV. मतलब दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ इसका कितना हुआ? 8.75 MeV, जो कि ज्यादा है किससे? यूरेनियम का 7.6 MeV. जबकि अगर हम बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ निकालेंगे, इफ आई विल बी सेइंग व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम 238 इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम 38, जबकि ग्रेटर है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फेरिक 56. तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब मोर स्टेबल है, इसका कोई मतलब नहीं है. पर न्यूक्लियन डिवाइड करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये कितना स्टेबल है. तो इसका भी एक ग्राफ हम बना सकते हैं, राइट? बाइंडिंग एनर्जी मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस को मास नंबर के साथ जोड़ के हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं. जैसे कि अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, जस्ट 1 मिनट गिव मी. मैंने अभी एक दो डायग्राम्स भेजा आपको, ठीक है, व्हाटएवर. बट अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर विथ मास नंबर को हम ड्रॉ करेंगे, राइट? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मतलब एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन नीडेड टू रिमूव द न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसका अगर हम वर्सेस मास नंबर ए के साथ अगर हम देखेंगे, तो हमें इस तरह की एक ग्राफ मिलेगा, राइट? और उसी प्लॉट का मेन फीचर्स क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज पॉजिटिव फॉर द ऑल द न्यूक्लियाई, एंड प्रैक्टिकली ये कांस्टेंट है.
and independent of the atomic number for the nuclei is middle of the mass number. वो हम ग्राफ से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे अभी, उस ग्राफ को हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा आप उस ग्राफ के साथ एक्वेंटेड हो जाओ, ठीक है। तो उसके साथ हम मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि कुछ रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस जब होता है तो एक पेरेंट न्यूक्लियस के साथ हमने एक अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट करवाए तो एक कंपाउंड न्यूक्लियस आया, फिर प्रोडक्ट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस, फिर कुछ एनर्जी भी रिलीज हुआ। तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। मतलब वो जो न्यूक्लियर प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर विथ मास नंबर, उस ग्राफ से हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो ग्राफ ग्राफ थोड़ा आप देखो थोड़ा बुक्स में आज, ठीक है। फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं थोड़ा चलता हूँ न्यूक्लियर एनर्जी के पास, फिर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस, फिर हम क्लास को रखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के पास। You go through the graph today in the book, then I will explain you, right? I will share the book next class and I will explain. Nuclear energy, student, nuclear energy क्या है? मतलब simple energy of the nucleus, right? And when nuclei with less total binding energy transform into a nuclei with greater binding energy, so nuclear energy is released. So there are two fundamental processes considered for taking out the nuclear energy, that is nuclear fission and nuclear fusion. तो वो पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, राइट। गिव एडिंग न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में जानना, राइट। दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि द प्रोसेस बाय व्हिच द identity of a nucleus is changed when bombarded by an energetic particle is called nuclear reaction, right? So right, the process nuclear reaction, right, for subjective exam of class 12 board exam, right, the process by which the identity the process by which the identity of a nucleus is changed when it is bombarded by an energetic particle, by an energetic particle is called nuclear reaction, is called nuclear reaction. अगर मैं उसको एक नॉर्मल वे पे दिखाऊं, राइट, तो हमने एक न्यूक्लियस लिए, मान के चलो ये पेरेंट न्यूक्लियस है, इसके साथ हमने एक अल्फा पार्टिकल, राइट, इंसिडेंट पार्टिकल हमने किया एक, इसको टकराने के बाद क्या हुआ, एक कंपाउंड न्यूक्लियस मिल सकता है, मिलके कंपाउंड न्यूक्लियस एग्जांपल देखेंगे हम, और नहीं तो फिर कोई भी एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस, उसको कहते हैं प्रोडक्ट न्यूक्लियस, उसके साथ एक डॉटर न्यूक्लियस, एक एग्जांपल लेके देखेंगे हम इसको, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होता है, राइट। स्टूडेंट एक्स जो है और अल्फा जो है, दोज आर रिएक्टेंट एंड वाई एंड बी आर द प्रोडक्ट्स एंड क्यू इज द काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लॉ आल्सो ओबेड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। मास नंबर and electric charge is conserved here. Linear momentum and angular momentum also conserved. Total energy of the reaction remain constant, but in terms of Q helps to balance the total energy reactions, right? और यहाँ पर एक चीज आता है स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट आता है या फिर हीट देना पड़ता है, तो उसके लिए एक चीज हमें जानना होगा, उसके साथ क्यू वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय क्यू वैल्यू, राइट। उसके बाद लिखो क्या क्यू वैल्यू है। मतलब क्यू वैल्यू मींस द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इनिशियल कांस्टीट्यूएंट and the rest mass energy of the final constituent of the nuclear reaction, right? So write q value means, just write q value means the difference between, q value means the difference between the rest mass, the difference between the rest mass energy of initial constituents, and the rest mass energy
of final constituents of nuclear reaction. दैट मीन्स अगर क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस देखें, मतलब ये जो आपने देखे ना अभी कि x को मान के चलो अल्फा या फिर a को हमने, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या आया y प्लस b प्लस q, सो दिस q इज व्हाट, q वैल्यू। तो ये जो q है दैट इज व्हाट, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ui क्या है, ui इज रेस्ट मास एनर्जी, राइट, ui इज रेस्ट, ui is rest mass energy, right, ui is rest mass energy and uf क्या है, rest mass energy of final constituents, rest mass energy of final constituents, right है ना। तो उसको कैसे निकालेंगे हमने ना, अगर हमें एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे, मास ऑफ x प्लस मास ऑफ a जो हमने लिए माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ b, जो मास डिफरेंस आएगा उसको c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, Q का वैल्यू कभी कभी पॉजिटिव होता है, तो जब Q का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केमिस्ट्री में आप देखे होंगे इस तरह के रिएक्शंस। एंड अगर Q का वैल्यू नेगेटिव आया तो क्या होगा, एंडोथर्मिक, राइट, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो अगर मैंने आपको मैंने आपको कुछ डाटास दिया और मैंने पूछा कि बताओ मुझे कौन सा वाला स्टेबल है ज्यादा, मान के चलो जो जो मैंने अभी बता रहा था, जो मैंने एक एग्जांपल के जरिए अभी समझते हैं, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से स्टेबिलिटी कैसे रिलेट करेंगे, राइट। मैंने आपको दे दिया कि 3 न्यूक्लियाई मैंने लिया, P Q R, 3 न्यूक्लियाई हमने लिए और एक में एटॉमिक मास निकाले, राइट, एटॉमिक मास नंबर, राइट, एटॉमिक मास नंबर A में दिया गया और एक में बाइंडिंग एनर्जी दिया गया MeV में, राइट। इसका 10 है, एनर्जी 100 है, इसका 5 है, इसका 60 है, इसका 6 है, इसका 66 है। तो आप बता सकते हो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा PQR में अगर देखेंगे तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कितना है 100/10, कितना हुआ स्टूडेंट्स 10 हुआ ना। इसका कितना हुआ 60/5, कितना हो गया 12 ना। इसका कितना हुआ 66/6, कितना हो गया 11। तो आप अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हो ना, व्हिच वन इज मोर स्टेबल, बताओ मुझे। Q इज मोर स्टेबल, राइट, देन उससे पीछे आता है R, उससे पीछे आता है P। अंडरस्टूड, समझ पे आया ना स्टूडेंट्स, गेटिंग और नॉट। यस सर। तो अभी और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया कि छोटे मोटे क्वेश्चंस इसके ऊपर से आता है, मतलब ये छोटे क्वेश्चन जानने से हम कर पाएंगे अलग क्वेश्चंस। एक न्यूक्लियस है जिसका बाइंडिंग एनर्जी है 100 MeV, ठीक है, न्यूक्लियस आज बाइंडिंग एनर्जी इतना दिया गया कि एक न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी 100 MeV है। इट फर्दर रिलीजेस 10 MeV, इट फर्दर रिलीजेस 10 MeV, राइट। फाइंड द न्यू बाइंडिंग एनर्जी पूछा है, फाइंड द न्यू बाइंडिंग एनर्जी। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंपल है, 100 था फिर 10 दिया तो ऐड कर देंगे 110 MeV, राइट, गेटिंग ना। सो न्यू बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 100 प्लस 10, दैट इज 1110 MeV। अंडरस्टूड ना स्टूडेंट्स। एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया गया, राइट, तो फॉर एग्जांपल फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए, चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, है ना, हाउ टू बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है, उसके साथ भी हम देख सकते हैं कि अच्छा अभी जो मैंने बताया आपको 931 MeV, वो आपको समझ पे आ गया ना, डिड यू गेट दैट और यू आर हैविंग डाउट दैट पार्ट आल्सो। Yes, sir, we get. yes yes, compute the energy of 1 MeV in MeV, मतलब 1 MeV का एटॉमिक मास यूनिट को कैसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट 1 MeV में मतलब मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.66 into 10 to the power minus 27 ग्राम, राइट, यस सर नो।
और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर E इज इक्वल टू MC स्क्वायर हम पुट करेंगे, E इज इक्वल टू हाउ मच kg है ये, MC स्क्वायर अगर पुट करेंगे तो क्या करेंगे 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, राइट है ना। तो इसे कितना आ जाएगा, पूरा एनर्जी आएगा 14.9 इंटू 10⁻11 जूल, राइट ना। बट अभी हमें जूल को हमें किस पे कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट करना है, गेटिंग ना। So 1 MeV means, you know what? 1 MeV means 1 MeV. 1 eV मतलब 1.6 charge of electron into 10⁻19 मेगा मतलब कितना 10⁻6 this much joule. Understood ना student? तो 1.6 into 10⁻13 joule is MeV. अगर हमें इतना जूल को MeV में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, there is 14.9 into 10⁻11 जो निकला था डिवाइडेड बाय 1.6 into 10⁻13 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 9381 MeV. अंडरस्टूड दिस पार्ट, अंडरस्टूड और नॉट स्टूडेंट्स। एकदम छोटे छोटे चीज जो क्वेश्चंस आता है बहुत जगह पे कि 1 MeV एक्चुअली स्टूडेंट्स को ये 931 की चीज पता है कि नहीं। कभी कभी ये भी दिया जाता है कि कंप्यूट एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम इन किलोवाट आवर, 1 ग्राम को 1 किलोवाट आवर की एनर्जी इक्विवेलेंट के हिसाब से निकालो, राइट। दोज आर द वेरी स्मॉल थिंग्स। कभी कभी किलोवाट आवर और MeV में भी रेशियो पूछ लेता है, तो राइट कंप्यूट, ये बेसिक चीज आपके दिमाग पे रहना चाहिए, राइट। कंप्यूट द एनर्जी इक्विवेलेंस, compute the energy equivalence of 1 gram in kilowatt hour, right। स्टूडेंट्स देखो इसका सोल्यूशन अगर देखेंगे 1 ग्राम मतलब कितना केजी है 10⁻³ केजी। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट है ना। तो E इज इक्वल टू हाउ मच MC स्क्वायर पुट कर सकते हैं ना। सो दैट इज 10⁻³ इंटू 3.3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, पूरा अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 9 इंटू 10⁻13 जूल मिल जाएगा। अंडरस्टूड। एंड 1 किलोवाट आवर हाउ मच जूल, यू नो वर्क एनर्जी पावर 3.6 इंटू 10⁻6 दैट इज 36 इंटू 10⁻5 जूल ना, है कि नहीं। सो अगर एनर्जी इक्विवेलेंस उसका निकालेंगे विल फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंस, so that is equal energy equivalence of 1 gram, that is equal to how much 9 into 10⁻13 divided by 36 into 10⁻4, that is 0.25, that is 2.5 into 10⁻7 kilowatt hour, right है ना। सो नेक्स्ट चलते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल पूछा रेशियो ऑफ किलोवाट आवर एंड MeV बताओ। बहुत जगह पे ये क्वेश्चन कभी कभी सिलीली पूछ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ किलोवाट आवर एंड MeV, तो तभी पता होगा ना, होना चाहिए ना कि किलोवाट आवर जो इतना किलोवाट आवर इतना MeV है, राइट। सर ये जो आएगा ये MeV में आएगा ना स्टूडेंट्स, करेक्ट ना। सो रेशियो ऑफ किलोवाट आवर एंड MeV, तो 1 किलोवाट आवर मतलब क्या है 10⁻³ जूल सेकेंड इनवर्ट्स, राइट, इंटू 60 इंटू 60, ये हम निकाल चुके हैं पहले से, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 1 किलोवाट आवर। एंड 1 MeV जे कितना है दैट इज 10⁻6 EV, दैट इज 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जो हम अभी निकाले थोड़ी देर पहले 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, राइट। तो जब रेशियो निकाल देंगे 1 किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय 1 MeV, so that will be 3.6 into 10⁻6 divided by 1.6 into 10⁻13, so that is 2.25 into 10⁻19, right। Okay, this is the ratio, just keep in mind। इतना बेसिक्स के साथ आज हम इस क्लास को रखते हैं, ठीक है। बाकी फिर कल की क्लास पे हम देखेंगे कि इसके बाद